अगर हमने ये जान लिया है कि ऑक्सिन सिंथेसाइज कहाँ से, मतलब ऑक्सिन क्या है केमिकली और कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है प्लांट में। Hello and welcome to all my lovely Smartians. How are you doing? I hope you are really well. Today I am up with a very interesting, a very exciting and a highly demanded video on the topic plant growth regulators. In this particular video I will be dealing with the topic auxin, and in the subsequent video I will deal with other plant regulators. Before we discuss auxin, let's find out what are plant growth regulators. So as the name suggests, plant growth regulators are chemicals that help in regulating, in controlling the growth of the plant, right? So they are diverse group of chemicals. PGRs are small, simple molecules of diverse chemicals that help in regulating the growth of the plant. What is important is that you should know that they are small and simple molecules. We can also call as plant hormones. I am sure you all know the different type of plant growth regulators. You must have studied in your lower classes as well. So plant growth regulators, since they are regulating the growth of the plant, they are also called phytohormone. The term phyto refers to plant, and as I said that these regulators can also be called hormones, so we can call them as plant hormones, phytohormones, right? प्लांट के लिए वर्ड बेटा फाइटो यूज होता है ना। आपने लोअर क्लासेस में भी डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में सुना तो होगा ही, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथिलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन्स. All these plant growth regulators only we have to study, but in a little more detail. These plant growth regulators, they are synthesized in the body of the plant in response to various stresses as well. Growth के regulation में तो है ही, but बहुत सारे stress जब plant को हो जाते हैं, चाहे वो biotic stress हो, the biotic stress will be of course a biological organism causing a stress, or some abiotic factors like water stress, salinity stress, they are also synthesized in response to these stresses as well. So they are part of their defense system as well, you can say. So plant growth regulators of the other group play an important role in plant responses to wounds and the stresses of biotic and abiotic origin. So we know auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, abscisic acid. In the particular video, I'll be dealing with auxin today. Natural plant growth regulator 5 हैं, ये हमें पता है, right? So let's see what is auxin. सबसे इंटरेस्टिंग बात आप सबको पता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में कि all the plant growth regulators, natural plant growth regulators we know today, they were discovered accidentally. All the PGRs have an accidental discovery कि by chance हो गई है ना। तो ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। ऑक्सिन को डिस्कवर किया था किसने? द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वॉज बाय चार्ल्स डार्विन एंड द फ्रांसिस डार्विन. डार्विन के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो उन्हीं चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहली बार रिपोर्ट किया कि जो कॉल्यूप्टाइल्स है कैनरी ग्रासेस के, when they were being illuminated by light from a particular direction only, तो ये जो ग्रास का कॉल्यूप्टाइल है वो बेंड हो गया towards the light. जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी उसी डायरेक्शन में ये बेंड हुआ. Such type of bending or movement is called phototropism. Tropism is the movement and photo is towards the light. So when the grass was illuminated by light from one side, वो उसी तरफ बेंड हो गया. ये उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की, करेक्ट है ना.
अब धीरे धीरे डिस्कवरी में जाते हैं कि कैसे ये हुआ। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड हुआ कि जो कोलेप्टाइल का टिप था वहाँ से कुछ तो ऐसा रिलीज हो रहा था विच वॉज गेटिंग ट्रांसमिटेड to the other side or the darker side of the coleoptile, यानी the one which is not exposed to the light, और ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते होते इस साइड पर गया क्योंकि लाइट इधर से आ रही है, और यहाँ पर जो सेल्स हैं उनका इलोंगेशन करवाया। जैसे जैसे सेल्स इलोंगेट होने लग गए उस तरफ, यानी इंक्रीज इन लेंथ, तो बेंडिंग देखने को मिली एंड द कोलेप्टाइल बेंडेड टुवर्ड्स द लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। ठीक है, बाद लेटर ऑन इट वॉज फाउंड कि द केमिकल वॉज ऑक्सिन। F.W. वेंट ने कहाँ से ऑक्सिन को आइसोलेट किया था? ओट की सीडलिंग से। ठीक है, he isolated it from the coleoptiles of the oat seedlings, जबकि for the first time the auxin was isolated from human urine। ठीक है, ये भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि फर्स्ट आइसोलेशन ह्यूमन यूरिन से हुआ था और F.W. वेंट ने कहाँ से आइसोलेट किया था बेटा? ओट के कोलेप्टाइल से। ठीक है, द टर्म ऑक्सिन is basically representing the growth। So ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ में हेल्प करता है और आपने देखा कि बेंडिंग ऑफ लाइट वो करवा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स केमिकल्स हैं, डाइवर्स केमिकल्स हैं, तो ऑक्सिन कौन सा केमिकल है वो आपको पता होना चाहिए। नेचुरली ऑक्सिन केमिकली इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में, एनसीईआरटी में अंडरलाइन कीजिए। द टर्म ऑक्सिन इज यूज्ड टू अप्लाई टू chemical indole 3 acetic acid and there are many other natural as well। और साथ साथ हमने इन्हें आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर दिया है। देखो आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ हार्मोन्स भी अवेलेबल है जो फार्मर्स अपनी फील्ड में यील्ड को बढ़ाने के लिए या डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। आप कौन सा हार्मोन कब यूज़ कर सकते हैं, वो कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आप तभी पता कर पाएंगे जब आपको उनके फंक्शंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, राइट। जैसे मैं आज आपको ऑक्सिन के बारे में बता रही हूँ। तो देखो क्या इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सिन जो है वो किसने पहली बार ऑब्जर्व किया या एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी कैसे शुरू हुई? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। उनके सन ने जब देखा कि कोलेप्टाइल्स जो हैं वो बेंड हो रहे थे कैनरी ग्रास के टुवर्ड्स दी सनलाइट, जब वो एल्यूमिनेट हुए एक डायरेक्शन से। सो डिस्कवरी इम्पॉर्टेंट है। फिर कहाँ से ये पहली बार आइसोलेट हुआ? ह्यूमन यूरिन से भी, और F.W. वेंट ने ओट के कोलेप्टाइल से किया। केमिकली ऑक्सिन क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड देयर आर अदर नेचुरल फॉर्म्स एज वेल, करेक्ट। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कहीं लिख लीजिए कि ऑक्सिन का जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं अवीना कर्वेचर टेस्ट। अवीना कर्वेचर टेस्ट। अब अवीना क्या है यहाँ पे? ओट, ठीक है। अवीना किसको बोलते हैं? ओट को। और कर्वेचर इज द बेंडिंग। ओट की जो सीडलिंग थी वो बेंड हो रही थी टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। तो अवीना कर्वेचर टेस्ट जो है वो ऑक्सिन के लिए यूज होता है, ऑक्सिन टेस्ट है, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन PYQs में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लिखा बेटा। अगर हमने ये जान लिया है कि ऑक्सिन सिंथेसाइज कहाँ से, मतलब ऑक्सिन क्या है केमिकली और कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है प्लांट में। सो प्लांट में जो रूट और शूट एपिसेस होती हैं वहाँ पे ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है। सो द आफ्टर यू राइट द डिस्कवरी, उसके बाद आप केमिकली लिखिए कि केमिकली इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, अवीना कर्वेचर टेस्ट है, एंड देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मेंशन द लोकेशन। So location क्या है? Apices of stem and root where it is being synthesized. Location, apices, shoot apical meristem and the root apices synthesize auxin। फिर वो वहाँ से travel करता है
टू दी अनदर रीजन जहाँ पर फिर वो इलोंगेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड मेनली, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड भी नेचुरल फॉर्म है ऑक्सिन का जो प्लांट से आइसोलेट हुए हैं। तो नेचुरल, नेक्स्ट पॉइंट आप फटाफट लिखिए कॉपी में, नेचुरल ऑक्सिन के एग्जाम्पल इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सिन्स हैं। आपको नीट में आएगा ही आएगा बेटा ये क्वेश्चन। इनके फॉर्मूलाज दिए हैं, फॉर्मूला इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है याद करना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नाम आपको पता होने चाहिए। आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स के भी नाम हमें पता होने चाहिए। सो सिंथेटिक ऑक्सिन्स में आएगा एक तो नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो 2,4-D एंड NaA आर सिंथेटिक ऑक्सिन। ठीक है, देन ऑल दीज आर यूज्ड इवन इन हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। ऑक्सिन के अब कहाँ कहाँ कैसे यूज है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में, वो हम देखेंगे। तो द फर्स्ट इफ वी सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सिन क्या करता है, सेल इलोंगेशन। ठीक है, फिर ऑक्सिन को रूटनिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है इन दी स्टेम कटिंग। स्टेम की कटिंग्स लो और उसको ऑक्सिन वाले मीडियम में रखोगे ना तो वहाँ पर रूट इनिशिएशन हो जाएगा। तो अगर आपको अपने कल्चर्स जो आपने लगाए, कैलिस ग्रो किया, कैलिस को अगर डिफ्रेंशिएट करवाना है एक रूट कल्चर में, तो आपको ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो में क्या ज़्यादा करना पड़ेगा बेटा, ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन प्रमोट करता है रूटनिंग। सो ऑक्सिन सेल इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है, रूटनिंग में हेल्प कर रहा है, और इस तरीके से प्लांट प्रोपगेशन किया जा सकता है। प्रोपगेशन मीन्स इंक्रीज इन नंबर। तो मैं स्टेम कटिंग से पूरा प्लांट बना सकती हूँ बहुत सारे ऑक्सिन ट्रीटमेंट से जो रूटनिंग में हेल्प करते हैं। देन देखिए, देखो कितने अच्छे से यहाँ दिखाया है, यहाँ पर कुछ स्टेम कटिंग्स ली गई हैं। उन स्टेम कटिंग्स में ऑक्सिन का ट्रीटमेंट जब दिया गया बेटा, तो ये देखो ये रूट फॉर्मेशन शुरू होता गया। ये जो आप देख रहे हो ये रूटनिंग हो रही है ऑक्सिन के ट्रीटमेंट की वजह से। ठीक है, सेल इलोंगेशन तो आपको पता ही है। देन ऑक्सिन इवन प्रमोट, द सेकेंड फंक्शन इज ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन एग्जाम्पल पाइनएप्पल्स में। सो पाइनएप्पल के प्लांट में फ्लावरिंग इनिशिएट करवाता है ऑक्सिन। दिस इज योर थर्ड फंक्शन। पहला सेल इलोंगेशन, सेकेंड रूटनिंग, थर्ड इज फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ और आपको एज इट इज बेटा ये करना ही है। ठीक है, देन एब्सेशन को प्रिवेंट करता है, किसके एब्सेशन को, यंग प्लांट, यंग फ्रूट्स और लीव्स के। नाउ व्हाट इज एब्सेशन, एब्सेशन मीन्स फॉलिंग, फॉलिंग ऑफ। तो आपको देखो एक टाइम के बाद जो राइप फ्रूट है वो फॉल कर जाता है, खुद गिरता है कि नहीं गिरता है, और ऑटम आता है तो लीव्स भी गिरने लगती हैं। तो उस फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट इज कॉल्ड एब्सेशन। इस एब्सेशन में कौन हेल्प करता है प्लांट को, ऑक्सिन हेल्प करता है। पर ऑक्सिन जो है वो मैच्योर फ्रूट्स और लीव्स का ही एब्सेशन करवाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये ओल्ड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट को एब्सेशन करवाएगा, यंग वाले को नहीं करवाएगा। सो यंग वाले का लीफ ड्रॉप प्रिवेंट करता है, इट मेक श्योर कि जो यंग लीव्स हैं, यंग फ्रूट्स हैं वो ना गिरे, बट जो ओल्डर वन है वो गिरे। ठीक है, देन नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एपिकल डोमिनेंस। इस फिनोमेना को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस मतलब अपनी चलाना, एपिकल, एपिकल बड। आपको पता है कि जो बड्स होती हैं वो एपिकल या एक्सिलरी होती हैं, अगर इसके अलावा कहीं और से निकले तो एडवेंटिशियस बड। एपिकल बड टिप ऑफ द एक्सिस पर होता है। ठीक है, एपिकल बड, और जो एक्सिलरी बड होता है वो एक्सिल में होता है लीफ की, यहाँ इस एंगल पर।
ये देखो यहाँ दिया है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो एपिकल बड से ऑक्सिन रिलीज होता है वो ऑक्सिन नीचे ट्रैवल करता है और एक्सिलरी बड को ऑक्सिन सिंथेसिस से रोकता है। सो द ऑक्सिन फ्रॉम दिस is going to travel to the apical axillary bud and prevent the synthesis of ऑक्सिन बाय द एक्सिलरी बड। अब जब एक्सिलरी बड अपना ऑक्सिन बनाएगी ही नहीं तो देयर विल बी नो डिविजन, नो इलोंगेशन, तो ये एक्सिलरी बड लेटरल ब्रांच में ग्रो ही नहीं कर सकती, राइट। वाई इट इज डन बाय द प्लांट टू मेक श्योर कि प्लांट अपनी एनर्जी स्टार्टिंग में पूरा लेंथ को ही इंक्रीज करने में लगा दे, इसलिए एपिकल डोमिनेंस चल रहा है। तो हमने या फार्मर्स ने इसी नॉलेज को कैसे यूज़ किया बेटा, जिस चीज़ में या जिन प्लांट्स में आपका एडिबल पोर्शन इज़ द लीफ, है ना, जैसे टी प्लांटेशन, उसमें आप टी लीव्स ही यूज़ करते हो, तो हमें तो ब्रांचेस ज़्यादा चाहिए, लीव ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में अगर हम एपिकल बड ही रिमूव कर दें तो क्या होगा, ऑन रिमूविंग द एपिकल बड, जो ये डोमिनेंस यहाँ चल रहा था कि एक्सिलरी बड इसकी वजह से सिंथेसाइज नहीं कर पा रही थी ऑक्सिन, अब वो ऑक्सिन सिंथेसाइज कर सकती है और क्या बना सकती है, ब्रांच। अब ये न्यू ब्रांच पर न्यू लीव्स आएंगी। तो टी प्लांटेशन में अगर आपने देखा है कहीं पर तो फार्मर्स जो हैं हर दूसरे या तीसरे दिन जाके उनको कटिंग, स्टेम कटिंग्स करते हैं, तो वो जो स्टेम कटिंग है उसे प्रूनिंग बोला जाता है, यानी रिमूविंग द एपिकल पोर्शन ऑफ द this bud so that they are released of the dominance and they can form lateral branches। इसी तरीके से hedge making में भी आपने gardens में hedges देखे होंगे, वहाँ पे भी ये application use किया जाता है, ठीक है। Removal of shoot tip will result in the growth of the lateral bud forming the lateral branches। ये देखो ये hedge making में तो आपने या अपने आपके घर के आसपास गार्डन होंगे तो वहाँ देखना वहाँ पे एक हेज बना होता है बाय दीज टाइप ऑफ ग्रासेस या श्रब्स, तो उसको फार्मर सुबह सुबह कटाई कर रहे होते हैं, तो व्हाट इज दैट, दैट इज प्रूनिंग। और प्रूनिंग से वो क्या कर रहे हैं, शायद उन्हें ना पता हो या हमसे ज़्यादा भी पता हो, बट द प्रूनिंग इज हेल्पिंग इन रिमूवल ऑफ द एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ऑक्सिन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी एज वेल। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन विच लीड्स टू सीडलेस फ्रूट्स। तो टोमेटो में इट हेल्प्स इन पार्थेनोकार्पी। देन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाइलम डिफ्रेंसिएशन में और सेल डिवीजन में भी दिस ऑक्सिन हेल्प कर रहा है, जाइलम फॉर्मेशन में भी ऑक्सिन का रोल है। द वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड्स, जो मैंने आपको आर्टिफिशियल ऑक्सिन बताए, स्पेसिफिकली 2,4-D, और आपको पता है 2,4-D 2,4-T के साथ मिक्सचर में वियतनाम वॉर में भी यूज़ किया गया था एज एजेंट ऑरेंज, और वहाँ पर उन्होंने वो एजेंट ऑरेंज विच वॉज अ मिक्सचर ऑफ 2,4-D एंड 2,4-T ड्रॉप किया ताकि जो नीचे फॉरेस्ट हैं जिसमें वो छुपे हुए थे वो लीव्स का क्या करवा देगा, एब्सेशन, एंड दे कुड इजीली सी the enemies hiding there। so this 2,4-D very important, ये डाइकॉट वीड को ही क्या करती है, किल करती है, एंड नॉट द मैच्योर, डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट प्लांट। सो वीट फ्री लॉन्स प्रिपेयर करने के लिए ये यूज़ होता है। बट 2,4-D आप याद रखना कि सिर्फ डाइकॉट के लिए है, और एजेंट ऑरेंज जो वियतनाम वॉर में यूज़ किया गया था वो 2,4-D और 2,4-T दोनों का ही मिक्सचर है, ठीक है। 2,4-D एंड 2,4-T का मिक्सचर है, यूज्ड इन वियतनाम वॉर। समझ आए बेटा सारे टाइप के फंक्शंस। ऑक्सिन किसने डिस्कवर किया, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन। किस में, कोलेप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास जब उन्होंने ऑब्जर्व की। आइसोलेशन कहाँ से किया एफ.डब्ल्यू. वेंट ने,
ओट के कोलेप्टाइल से और फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। केमिकली ऑक्सिन क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटायरिक एसिड नेचुरल वाले, सिंथेटिक में आपके पास 2,4-D है, 2,4-T है। देन वी केम टू द फंक्शंस, लोकेशन ऑफ सिंथेसिस है एपिसिस ऑफ रूट एंड द शूट, और फिर उसके बाद हमने फंक्शन देखे सेल एलोंगेशन, रूटनिंग, देन इट हेल्प्स इन जाइलम डिफरेंशिएशन, सेल डिविजन, इट हेल्प्स इन इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी लाइक टोमेटोज, इट हेल्प इन इनिशिएटिंग फ्लावरिंग लाइक इन पाइनएप्पल्स, एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है और इसीलिए प्रूनिंग की जाती है टू रिमूव देम। देन इट हेल्प्स इन एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट बट प्रिवेंट द एब्सिशन ऑफ द यंग लीव्स एंड फ्रूट। तो अब थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि आपको कितना समझ में आया। फाइटोहॉर्मोन्स आर कंपाउंड्स दैट कंट्रोल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, बिल्कुल करेक्ट। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दोनों ही ठीक है। नो, दे आर नॉट एंजाइम्स, नॉट एट ऑल, they are not enzymes, so last one is the correct, both 1 and 2. नेक्स्ट अवीना कर्वेचर टेस्ट, मैंने आपको अभी बताया भी था कि आप नोट डाउन कर लो किसकी डिस्कवरी में है, ऑक्सिन की, ओट की, जो कोलेप्टाइल जो कर्व हुई, बेंड हुई, उसी को ही। नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन कौन सा है, ये भी मैंने आपको बोला था आएगा। सो नेचुरली अकरिंग इज IAA, NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D जो है वो सिंथेटिक है। मेरे बताने से पहले आप पॉज करके आंसर लिखेंगे। सो that's all for today. I really hope you like the video and you're able to understand what auxin is, what it do in plant, and you are very confident about this topic. I'll be up with another videos based on the hormones. One by one, I'll be dealing with cytokinin, ethylene, abscisic acid in my subsequent video. Stay tuned for more videos. If you really like my video and you have understood the concept, then do like, share and subscribe to the channel. Stay happy, keep smiling.